इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा समझेंगे हिस्टोरिकली, एंड देन विल गो इनटू द करंट प्लेसेस व्हिच हैव बीन इन न्यूज़ एंड ऑल। देखो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट ना, इनफैक्ट इट डजंट स्टार्ट फ्रॉम 1948 और 1917 में, आफ्टर द इंग्लैंड had defeated the Ottoman Empire, है ना? ऑटोमन ही थे, हाँ शायद ऑटोमन एम्पायर। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर वाज देयर, है ना? एट दैट टाइम दे अनाउंस्ड कि जो ये वाला रीजन होगा ना, यहाँ पे a Jewish settlement would be created. So from 1917 till the Second World War and after Second World War, a lot of Jews from all over the Europe came and started settling in this region. This region was Palestine. यहाँ पे, और यहाँ पे भी किसका, UK had some control, UK had some say, so they could come up with this thing. So for 30-40 years a lot of Jews from all over the Europe came and settled here. After World War II, United Nation General Assembly से, आप देखो United Nation में they had a lot of say. In United Nation General Assembly they got a resolution passed for the creation of the state of Israel. So in 1948 the state of Israel was created by UNGA, a resolution on land inhabited by both Jews and Arab Palestine. So यहाँ पे some Jews were also living, and over last 30-40 years a lot of Jews had come and settled here, and then Palestinians were also there. So यहाँ पे they were the United Nations General Assembly, in the influence of US, UK and all these countries, passed the resolution कि एक नई country बनेगी, कौन सी? इजराइल। तो यहाँ पे दो अलग अलग कंट्रीज बननी थी, इजराइल और पैलेस्टीन। पैलेस्टीन तो पहले से था, तो इजराइल also had to be created. अब अरब countries were unhappy about it, they didn't agree with it, and what happened, the hostilities between the two communities started. यहाँ पे wars, Arab Israel wars also started. But over the years, देखो यहाँ पे 1948-49 में अरब इजराइल वॉर हुआ। अब अरब इजराइल वॉर में इजराइल was helped a lot by Western countries. Later तो the fate of Gaza Strip fell in the hands of, यहाँ पे क्या हुआ, in the first Arab Israel war a lot of Palestinian refugees they moved to north में क्या है, Lebanon, they moved to Syria, they also moved to Egypt. Then ये जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप का काइंड ऑफ कंट्रोल, many of them became refugee in Gaza Strip, a narrow swath of land which was under the control of Egypt. In 1967 एक और वॉर हुआ, उसमें इजराइल was able to take back the Gaza Strip, जो इजराइल के, जो किसके कंट्रोल में था, इजिप्ट के कंट्रोल में था. इट वाज आल्सो एबल टू, तो यहाँ पे ना 1967 वॉर में दे वर एबल टू गेट कंट्रोल ओवर लॉट्स ऑफ प्लेसेस. They were able to get Gaza Strip from whom? From Egypt. They were able to get control over Golan Heights. Golan Heights सीरिया के पास था. They were also able to get control over Golan Heights. तो अभी Gaza Strip पे भी Israel has control kind of, and Golan Heights पे भी Israel has control. And over the years, what has happened? Israel's या फिर Jewish settlement has kept on increasing. देखो initially when in 1947 प्लान हुआ था कि इनिशियली 1947 दिस वाज द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. जो आप व्हाइट वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे जूइश सेटलमेंट थे. 1947 में जो पार्टीशन का प्लान बना कि एक सेपरेट कंट्री इजराइल बनेगा, ये वाला व्हाइट वाला इजराइल होता, बाकी सब पैलेस्टीन होता. बट ओवर द इयर्स द जूइश सेटलमेंट्स हैव केप्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड दिस इज द करंट सिनेरियो. अभी बस ये गाजा स्ट्रिप रह गया है, थोड़ा सा वेस्ट बैंक में दिस रीजन इज लेफ्ट, जहां पे पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन इज लेफ्ट. एंड दस व्हेन दिस इज हैपनिंग इन दैट सिनेरियो, वॉर्स एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर रेगुलरली हैपनिंग. जैसे पैलेस्टीनियन की तरफ से द फर्स्ट इंतिफादा, द फर्स्ट अपराइजिंग happened in 1987. It was this year that Hamas was created. Hamas, the terrorist organization against which Israel is fighting right now, it was created in 1987. अब जब आप बैकग्राउंड देखोगे तो हमस का क्रिएशन वुड बी लाइक, इस वाले सिचुएशन में इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन डू इमर्ज, डू कम इनटू प्ले. तो हमस वाज क्रिएटेड. यहाँ पे 1993 में देयर वाज अ चांस ऑफ सॉल्यूशन.
पैलेस्टीनियन साइड से भी एक लिबरल पार्टी, इजरायली साइड से भी एक लिबरल पार्टी, दे बोथ एग्रीड टू फाइंड अ टू स्टेट सॉल्यूशन, बट ऑन बोथ द साइड्स दी कट्टर वाली पार्टीज दे रेज्ड इश्यूज। जैसे हमस डिड नॉट एग्री टू इट, यहाँ पे पीएलओ तो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दे एक्सेप्टेड टू स्टेट सॉल्यूशन एंड रिकॉग्नाइज इजराइल फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी तक इजराइल को दे हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड कि यहाँ पे इन आवर रीजन हाउ कैन यू क्रिएट सम अदर कंट्री, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1993 व्हाट हैपेंड, पीएलओ रिकॉग्नाइज्ड इजराइल एंड टू स्टेट सॉल्यूशन जैसी चीज एक्सेप्टेबल हुई थी। बट हमस अपोज्ड इट, हमस इस तरफ से कट्टर वाली पार्टी, एंड इवन इन इजराइल there was opposition, their prime minister was killed by the Israelis themselves, वहां पे भी कट्टर वाले लोग, they had killed the prime minister. So the plan was ultimately derailed among suicide bombing by Hamas and assassination of Israeli PM Yitzhak Rabin by a Jewish extremist in 1995. So this solution could not emerge. Second intifada, what is its correct pronunciation, would someone tell me? Intifada, it is the correct pronunciation, जैसे विवेक बताए, इंतिफादा है, ओके ओके। Let's come to this. So it was a major uprising of Palestinians against Israeli occupation, characterized by a period of heightened violation. This also ended in 2005 by a Sharm el Sheikh summit and Israel's military withdrawal from Gaza. तो अब गाजा पे kind of Hamas had control. Israel completely withdraw, गाजा पे Hamas is controlling, and West Bank पे तो in fact ये हुआ गाजा अंडर हमस कंट्रोल। तो अब ना देयर आर टू रीजंस ऑफ पैलेस्टीन, एक तो वेस्ट बैंक वाला रीजन है, वहां पे दिस एक पार्टी है फतेह, नीचे होगा लिखा, ऊपर लिखा है, हाँ, हमस एंड फतेह। हमस इमर्ज्ड एज दी डी फैक्टो रूलर इन गाजा स्ट्रिप, एंड उस तरफ कौन रूल कर रहा है, फतेह। तो ये दोनों पैलेस्टीनियन parties ही हैं, and they are looking for solution, but Hamas is trying to go in a more violent way, and that's the problem. So this 2007 में हुआ, this takeover by Hamas promoted blockade of Gaza Strip by Israel, Egypt, and set the stage for next 17 years of continued unrest. 2007 से 2023 तक continuous unrest kept on happening in Gaza Strip. It was in 2023 what happened? Hamas attacked Israel. हमस ने एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक किया इजराइल पे। 1200 people had died, 1200 civilians had died after Holocaust. Holocaust जब जर्मन्स ज्यूस को मार रहे थे, these many deaths taking place, this had happened for the first time. And to counter this, Israel has also invaded Gaza, airstrike, missile strike, ground strike, and this has led to, like as of March 2025, अभी जो महीने में हम बैठे हैं, 50,000 Palestinians have been killed and millions have been displaced. ये situation. Are we getting this? Pakka? What is the? I cannot go into the detailed Israel-Palestine political history, but before we go into the mapping section, broadly क्या हुआ है? 1917 में एक बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ, जहां पे यूके सेड कि एक इजराइल बनेगा। फाइनली उसका डिसीजन 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पासिंग अ रेजोल्यूशन। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन हैज नो फोर्स, इट्स बेसिकली इजराइल के साइड पावरफुल कंट्रीज है। इट वाज एबल टू गेट a separate country. Arabs did not agree to it. Arab-Israel conflict started. फिर बाद में 1967 में भी द अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अकर्ड। उसके बाद पैलेस्टीन के अंदर पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, पीएलओ है, देयर इज हमस, दे आर प्लेइंग सम और द अदर रोल। चांस ऑफ सम सॉल्यूशन अकर्ड इन 1993, बट इट फेल्ड बिकॉज ऑफ द दोनों साइड्स एक्सट्रीम ग्रुप्स जो थे, दे क्रिएटेड प्रॉब्लम। वहां पे हमस रिजेक्टेड इट, वहां पे यहाँ पे द एक्सट्रीमिस्ट्स in the Jewish extremist groups rejected it, creating the problems. Eventually in 2007 what happened? 2007 में Israel withdrew from Gaza and Gaza का पूरा कंट्रोल किसके पास चला गया?
हमस के पास। एंड सिंस देन हमस ने गाजा बेस्ड कई बार मिसाइल अटैक्स किए हैं। गाजा में अ लॉट ऑफ टनल्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर कोऑर्डिनेशन, फॉर मूविंग ऑफ पीपल एक्सेट्रा। इससे इलीगल स्मगलिंग भी होती है, आर्म्स भी एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। एंड अभी इजराइल इज फेसिंग प्रॉब्लम्स इन कैचिंग द टेररिस्ट इन गाजा। वन मेजर रीजन इज द नेटवर्क ऑफ दीज टनल्स इन द गाजा स्ट्रिप। बट थोड़ा सा पहले अब तो आई होप वी अंडरस्टैंड दी वैसे ओवरऑल हिस्ट्री। that is not our purpose here. I'm not here to teach you world history. I'm here to teach you the mapping section. Let's come to this thing. Israel Palestine में अब देखो, Israel is recognized as a separate country by a lot of players. Israel is not recognized as a separate country. वो पैलेस्तीन को मानते हैं, तो we'll call this region Israel Palestine. Israel Palestine में which are the important places जो न्यूज में रहे हैं, देखो, there is Gaza Strip, there is West Bank. गाजा स्ट्रिप पे किसका कंट्रोल है? हमास, है ना। वेस्ट बैंक पे फतेह है सम से, एंड इजरायली फोर्सेस आर आल्सो देयर। व्हाई इट इज कॉल्ड वेस्ट बैंक? ये ना जॉर्डन रिवर के वेस्ट में है। जॉर्डन रिवर, यहाँ पे विल स्टडी अबाउट जॉर्डन रिवर, विल स्टडी अबाउट गैलीली सी, विल स्टडी अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स हियर। अभी हमारा पूरा फोकस ही इस रीजन पे रहने वाला है। बट अगेन, बिफोर आई गो टू दिस रीजन, इजराइल के जस्ट ऊपर कौन सी कंट्री मेडिटेरियन सी को टच करते हुए? लेबनान। लेबनान के ऊपर ही मेडिटेरियन सी में कौन सी कंट्री है? सीरिया। सीरिया इज आल्सो हैविंग बॉर्डर विद इजराइल, है ना। एंड जॉर्डन इज आल्सो हैविंग बॉर्डर विद इजराइल। जॉर्डन का भी, तो देखो यहाँ पे वी हैव जॉर्डन, यहाँ पे वी हैव इजराइल, यहाँ पे वी हैव लेबनान। आई थिंक 2015 या 16 में एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन मेडिटेरियन सी को टच करता है या टच नहीं करता है। तो जॉर्डन टच नहीं कर रहा है। ऑफ दीज 4 कंट्रीज हु इज नॉट टचिंग मेडिटेरियन सी, जॉर्डन। इसको ध्यान रखना है। ओके, लेट्स कम बैक। हाँ, तो व्हाट इज वेस्ट बैंक? वेस्ट बैंक इज दिस रीजन, वेस्ट ऑफ जॉर्डन जो ये रीजन है, दैट इज वेस्ट बैंक। पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन इन इजराइल पैलेस्टीन वाला रीजन हियर इज कन्फाइंड इन these two regions. Now इसमें पूरे वेस्ट बैंक पे नहीं, we have seen वेस्ट बैंक में भी Jewish population is there, Jewish forces are also there, and Gaza Strip. These are the two places where they are, where this population is there. What is West Bank? West Bank is a landlocked territory near Mediterranean coast. Coast पे नहीं है, but near the coast. This is the Mediterranean coast, near the coast, bordered by Jordan. Here we'll study about this sea in a lot of detail. This is Dead Sea, and in the east by Israel. Also, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में वेस्ट बैंक इज सराउंडेड बाय इजराइल। तो वेस्ट बैंक, इस तरफ जॉर्डन है, इधर इजराइल है, यहाँ पे जॉर्डन रिवर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे व्हाट इज देयर? डेड सी। डेड सी देखेंगे, डेड सी इज इंपॉर्टेंट इन द सेंस की इट इज द लोवेस्ट सी, नॉट द डीपेस्ट। डीपेस्ट वाटर बॉडी कौन सा है? लेक बैकल, है ना। लोवेस्ट, इसका सरफेस लोवेस्ट है, और सरफेस लोवेस्ट होगा तो थिंग्स विल ओनली बी फ्लोइंग इन इट, इट विल बी सॉल्ट वाटर। इसका सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, यू जंप इन इट, यू विल नॉट गो इनसाइड, यू विल फ्लोट, यू विल नॉट ड्राउन, यू विल कीप ऑन फ्लोटिंग। चलो आते हैं, वेस्ट बैंक का नाम ये ऐसा क्यों पड़ा, समझ में आ रहा है? वेस्ट बैंक नेम वाज गिवन टू द टेरिटरी आफ्टर इट वाज कैप्चर्ड बाय जॉर्डन इन 1948। तो जो ईस्ट में तो जॉर्डन था, जॉर्डन रिवर के वेस्ट में क्या आ गया? वेस्ट बैंक। Jordan subsequently annexed the territory in 1950 and held it until 1967. 1967 में Israel got Jordan से West Bank, Egypt से Gaza and Syria से Golan Heights. यहाँ पे दिया हुआ है। After the Six-Day War in 1967, Israel gained control over Sinai Peninsula and Gaza Strip from Egypt. अच्छा, सिनाई पेनिनसुला भी उन्होंने ले लिया था, अभी सिनाई पेनिनसुला चला गया है, पर सिनाई पेनिनसुला, वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम फ्रॉम जॉर्डन एंड गोलन हाइट्स फ्रॉम सीरिया। अब ये व्हाट इज दिस फंडा ऑफ ईस्ट जेरूसलम? देखो, वेस्ट बैंक के यहाँ पे कैन यू सी जेरूसलम। अब यहाँ पे जेरूसलम इज सिग्निफिकेंट फॉर क्रिश्चियंस टू, जेरूसलम इज सिग्निफिकेंट फॉर Jews, and Jerusalem is also significant for Islam. तो वेस्ट जेरूसलम was इजराइल के कंट्रोल में, बट द ईस्ट जेरूसलम was
वेस्ट बैंक में जॉर्डन के कंट्रोल में, तो दे हैड आल्सो गॉट कंट्रोल ओवर इट। तो बेसिकली अब इस पूरे रीजन में, वेस्ट बैंक में भी, गाजा स्ट्रिप में भी, पूरे इजराइल में भी, हु हैड से द Israelis got to have say after 1967 war. So 1967 war में the Arab nations faced a lot of losses.